Hello students, so now I am going to start with the one of the important cell organelle in case of the eukaryotic cells. This cell organelle is known as the mitochondria, and plural it is mitochondria, singular it is mitochondrion, and we know that mitochondria is the powerhouse of the cell because this is the site for the aerobic respiration and they produces the cellular energy in the form of ATP. So that is why we call it as the powerhouse of the cell. Even if you recall your आपने जो 10th में पढ़ा था वहां भी हमने कहा था कि ग्लूकोज से पायरुवेट और पायरुवेट से फिर जो है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है. दैट इज वाई है ना, हमने हमेशा से कहा है इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. फाइन. So here the number of mitochondria per cell is depending upon the physical activity of the cell. That's very right. The cell which is more active, that means more ATP is required, so more number of mitochondria will be there. Those cells which are less active, they will have the less number of mitochondria. Then shape and size also show a considerable degree of variation over there. Then it is normally sausage shape का होता है या cylindrical होता है, which is a diameter of 0.2 to 1 micron meter and length from 1 to 4 micron meter तक. तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसका स्ट्रक्चर अगर मैं दिखा दूं, ये इस तरह से जो है ये डायमीटर और लेंथ की हमने अभी बात करी. सो इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन bound structure with the outer and the inner membrane which is dividing them into the two compartments. तो इसमें अगर आप देखें ये outer membrane है, ये inner membrane है, and now it is having two compartments, the inner compartment and this is the outer. This is called as the intermembranous space. This is called as the matrix or the inner compartment. Fine. Intermembranous space and the matrix is quite clear in the diagram. So these are the two compartments in case of the mitochondria. The inner membrane forms a number of infoldings called as cristae. फाइन. दीज इंक्रीजेज द सरफेस एरिया. अब यहाँ पर अगर हम देखें मैट्रिक्स के अंदर ये जो इसके अंदर फ्लूइड है जो लिक्विड है, फाइन, उस मैट्रिक्स के अंदर ये इस तरह से जो है फोल्डिंग्स हमें दिखाई दे रही हैं ऑफ द इनर मेम्ब्रेन. ये जो फोल्डिंग्स हैं इनको क्रिस्टे कहा जाता है. ठीक है. ये जो क्रिस्टे हैं ये क्या करते हैं, दे ऑल्सो लाइक जैसे हमने विलाय पढ़े थे स्टमक के अंदर, सिमिलर टू दैट दे ऑल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एंजाइमेटिक एक्शन. क्योंकि हमने यहाँ ATP बनानी है तो ये फोल्डिंग्स जितनी ज्यादा होंगी, मेम्ब्रेन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसके ऊपर ATP बन पाएगी. Fine. So this increases the surface area for the enzymatic action and this is towards the matrix which is a homogeneous mixture. Then इसमें जो है the two membranes have their own specific enzymes. दोनों के अपने अपने enzymes हैं और इनका ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनेगी, किस कौन कौन से चेंजेस वहाँ पर आएंगे, तो उसमें हम और अच्छी तरह से देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं विच ऑल आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन, विच ऑल आर प्रेजेंट ऑन द inner membrane. Then now the another interesting property of the mitochondria is there. It contains the circular DNA molecule. Fine. It is having its own DNA molecule having few RNA molecules and ribosomes, that is 70S type के ribosomes जो हैं, और उसकी वजह से ये they are able to synthesize of protein, some proteins in their सेल और इनसाइड द सेल ऑर्गेनली. फाइन. तो इसलिए हम इसको हमेशा क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली. सेमी मीन्स पार्शली, ऑटोनोमस मीन्स पार्शली एबल टू कंट्रोल सम ऑफ इट्स फंक्शन, सो इट इज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली है. फाइन. सेमी ऑटोनोमस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास अपना DNA है, RNA है और 70S राइबोसोम्स हैं एंड दे आर एबल टू मेक द प्रोटीन्स. Now, we will have one interesting story related to mitochondria over here. It was believed, ऐसा ये एक हाइपोथेसिस है, ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो कहीं पुराने टाइम पे ड्यूरिंग दी अर्ली फॉर्म्स ऑफ लाइफ द माइटोकॉन्ड्रिया वाज लाइक सम ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू बैक्टीरिया. जैसे बैक्टीरिया हमारे पास होता है वैसे ही ये कोई ऑर्गेनिज्म था जो कभी फ्री सर्वाइव करता था. With some evolutionary changes, somehow it has entered the eukaryotic cells. क्योंकि इसके पास अपना सर्कुलर DNA है, RNA है और राइबोसोम्स हैं, तो इसको एक ऐसे बैक्टीरिया के इक्विवेलेंट ऑर्गेनिज्म माना गया और ऐसा बिलीव किया गया कि विद एवोल्यूशन ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आ गया.
एंड लेटर ऑन इट इज परमानेंटली लिविंग ओवर देयर। अब ये वहां से कभी बाहर निकला ही नहीं, तो ये एक हाइपोथेसिस है, एक बिलीव किया जाता है कि ये कुछ, क्योंकि इसके काफी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के हैं, तभी हमने इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली कहा है। देन अगर हम इसी के साथ इसको रिलेट करें तो हमने कहा है जैसे हमारे पास कॉलन के अंदर जो है हमारे जो स्मॉल सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वहाँ पर हमने कहा था कि सीकम के पास के अंदर जो है सम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, सो दे आर लिविंग ओवर देयर हमारे अंदर, इट मीन्स वो एंटर कर गए हैं एंड दे आर परमानेंटली लिविंग। ऐसे ही बिलीव किया गया कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आया और उसके बाद परमानेंटली वहीं पर रह गया। Fine. So this is all about the semi-autonomous cell organelle. Now the another देखो एक और property है which is there in favor of this that the mitochondria are the semi-autonomous cell organelle, that it divide by the binary fission, जैसे हम बैक्टीरिया में देखते हैं that it divide by the binary fission. Similarly उसी तरह से जो हमारे पास बैक्टीरिया जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी बाइनरी फिशन से क्या करता है, डिवाइड करता है। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट दी mitochondria. Thank you, बच्चे।